Here is an interesting topic for us to identify now. If you say particular unit cell, ओके कोई भी यूनिट सेल होता है जैसे हमने अभी डिफाइन किए, वो भी सिंपलेस्ट टाइप के मतलब जहाँ पे हमने कॉर्नर पे एक एक यूनिट सेल को अंडरस्टैंड कर रखा है फिलहाल। तो हाउ मेनी लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट मोटिव्स आर देयर पर यूनिट सेल हियर। But in reality, what happens? This is only the smallest unit of the crystal. You have to consider that how many more unit cell like that are sharing one particular point. For example, if you look at this one, so this is, let's say I have highlighted, let's say one unit cell in this structure, and there are 8 lattice point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. I have highlighted one specifically, the one which is shared by other unit cell also. You can see that. Can you visualize this? It is also the same as black one, but I have highlighted it with this blue color so that you can visualize it at the center. Now you can see that considering the arrangement of unit cell next to this one unit cell, you can see that each lattice point is shared commonly by other unit cell. This is one unit cell which is anyway holding this, which I have actually highlighted. That's why we are saying that it is holding this one. But apart from this, you can see that there is another unit which is next to this. This unit also is holding this one, right? This unit which is behind this is also holding this one, same lattice point, and this unit cell is also holding the same one. Then there are just like above 4, there are 4 down, and they are also holding the same lattice point. So actually speaking, each lattice point, if you look at the whole crystal, and then try to think how many unit cells are sharing one particular lattice point, so you will find that any lattice point at the same time is being shared by 8 unit cells, above and below, sidewise, up and everywhere, okay, in 3 dimension. Is it clear to all of you? At least for the simplest of the cubical system, we can identify very easily that this lattice point is being shared by 8 unit cells. Whenever we have to find out the number of lattice point per unit cell, we have to find out the lattice point per unit cell in the crystal. So we will not be imagining this unit cell in an isolated manner. When we have to quantify, when we have to account everything, then this should not be imagined in an isolated manner, okay, because we have to account each of this. So आप देखो सिंपलेस्ट क्यूब जो है, अब प्रिमिटिव टाइप का जो यूनिट सेल होता है, अगर आप क्यूब की बात करें तो हमको पता है कि इसमें टोटल तो 8 लेटेस्ट पॉइंट है, हर एक इसके अंदर 8 हैं, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि हर एक को उसका केवल 1/8 हिस्सा ही इस यूनिट सेल का हिस्सा है, बिकॉज इस हर एक यूनिट पॉइंट जो है लेटेस्ट पॉइंट वो 8 और यूनिट सेल से शेयर हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट सेल किसी भी लेटेस्ट पॉइंट को, इसकी अगर हम बात करें तो उसका 1/8 हिस्सा ही शेयर कर रहा है ना। तो इस तरह से 1/8 फ्रॉम ईच, सो 1/8 फ्रॉम 8 ऑफ दिस, दैट मीन्स you can say that 1/8 from each multiplied by 8 of them, there is only one lattice point per unit cell, in this kind of geometry where you have simplest of the cube, okay, so there is only one lattice point per unit cell. ये समझ में आ गया आपको? ये कोई दिक्कत है? ये पैरामीटर कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा पैरामीटराइजेशन पे जा रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स को अब हम क्वांटिफाई कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, ठीक है। तो एक तो पैरामीटर हमने अल्फा बीटा गामा और वो सब देख लिया, बट मैंने जैसे कहा कि वो सारे की आपको केवल इंट्रोडक्शन, मतलब आपको ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो सारे ब्रेवेस लेटाइसिस हैं वो डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है, वो एक चीज़ है। बट उसके अलावा दूसरी अकाउंटेबिलिटी होती है फ्रेमवर्क के अलावा, वो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की या नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स की। तो नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स ही डिसाइड करेंगे कैसी अरेंजमेंट होगी, तो उनको हम अकाउंट कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव टाइप का जो यूनिट सेल है सिंपलेस्ट, उसके अंदर आप देख सकते हो देयर इज ओनली वन लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, बिकॉज हर एक लेटेस्ट पॉइंट को आपको केवल उसका 8वां हिस्सा ही कंसीडर करना है इस यूनिट सेल के लिए, और ऐसे आपके पास में 8 हैं टोटल। तो 8 into 1/8, that is equal to total 1 lattice point per unit cell. In the whole of the crystal, you can say that per lattice
per unit cell there is only one lattice point. Good. Then we also need to look into some of the non-primitive type of unit cell where you get some extra lattice point in the unit cell. ठीक है, वो मैंने जैसे बताया एक बॉडी सेंटर टाइप का हो सकता है, या फेस सेंटर टाइप का हो सकता है, या एंड सेंटर टाइप का हो सकता है. तो उसके भीतर भी टोटल ये अगर पर यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल में हम नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करें तो देखते क्या होता है. देखो, तो इतना तो क्लियर है कि ये जो 8 हैं टोटल जो कॉर्नर पे हैं, उसको तो हम जब कंसीडर करते हैं तो हमको पता है कि उसका टोटल अकाउंटेबिलिटी केवल 1 ही रखना है. ठीक है, 1 यूनिट 1 लेटेस्ट, इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट सेल वो होगा 1 एज लेटेस्ट पॉइंट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैलकुलेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है इस यूनिट सेल के लिए. अच्छा, इसमें सेंटर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको पता है ये अगर सेंटर में है इस यूनिट सेल के तो इसको कोई और यूनिट सेल शेयर ही नहीं करेगा, ये यूनिक है. तो ये जो है हिस्सा ये इसी तरह का है, दिस विल गिव यू 1, दिस इज सेम एज दिस, but there is one uniquely possessed by unit cell itself, and that is 1 per unit cell. So total how many? 1 plus 1, that means 2 lattice points per unit cell. In this kind of configuration or in this kind of lattice arrangement you will have, that means body centered cubical structure will have 2 lattice point per unit cell. अच्छा रहेगा. उसी तरह से फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें, अच्छा फेस सेंटर्ड से पहले यहाँ एंड सेंटर्ड देख लेते हैं. एंड सेंटर्ड में देखिए आप, मैंने जैसे बताया ये 8 तो हैं ही, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो ये 1 रहने वाला है, ये हमको पता चल गया. ठीक है, ये तो सबके अंदर कॉमन रहेगा, ये वाला जैसे यहाँ पे हमने देखा है ना, यहाँ पे भी हमको ये दिख जाएगा इस तरह से, ये तो कॉमन रहेगा. लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उनकी बात करें. अब आप देखिए इस लेटेस्ट पॉइंट को जो इस फेस के इस प्लेन के सेंटर में है, लेकिन तो एक तो ये यूनिट सेल है जिसके अंदर ये है ऑलरेडी, हम कंसीडर कर रहे हैं. एक इसके ऊपर यूनिट सेल होगा एग्जैक्टली उसका भी ये हिस्सा होगा, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल कोई भी फेस के ऊपर कोई भी प्लेन के सेंटर में जब यूनिट्स ये लेटेस्ट पॉइंट होता है तो वो हमेशा 2 से ही शेयर होगा, क्योंकि ये एज कॉर्नर पे नहीं है. कॉर्नर पे आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल बढ़ जाते हैं, यहाँ पे जब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है तो केवल 2 ही यूनिट सेल होंगे, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल इस सेल के अंदर इसका आधा हिस्सा लिया जा रहा है. ठीक है, एक नंबर बात ये हुई. तो एक पॉइंट को कंसीडर करते हो तो केवल आधा हिस्सा इसके अंदर आ रहा है. इसके अलावा ऐसे कितने हैं, 2. अगर हम एंड सेंटर्ड की बात करें तो 2 हैं ऐसे टोटल, एक ये है, एक ये है और एक ये है दूसरा. तो ये जो 2 हैं मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा है, तो अब ये जो होगा आपको ये भी 1 देता है और ये भी 1, तो मतलब क्या हो गया 2. इसमें भी 2 आ गया वैल्यू. जैसे बॉडी सेंटर के अंदर तो वो यूनिकली इसके भीतर ही पैक था, एक था, इसको कोई और शेयर नहीं करता, इसलिए इसका फुल कंट्रीब्यूशन आया, है ना. लेकिन इसके अंदर 2 हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा है तो भी 2 आता है. ठीक है, ये इस तरह से टोटल. अच्छा, फेस सेंटर्ड की हम बात करें तो इसके एज पे जो है कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन तो वैसा ही 1 रहने वाला है ना, उनका कंट्रीब्यूशन टोटल 1. लेकिन अब आप देखिए इसके अंदर टोटल फेस सेंटर में टोटल 6 फेसेस हैं, मतलब 6 लेटेस्ट पॉइंट हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन जैसे इसमें आधा था उसी तरह से इसमें भी आधा आधा हर एक का है. लेकिन देर आर 6 ऑफ देम. ओके, सो इफ देर आर 6 ऑफ देम देन यू कैन वेरी इजीली से दैट 6 multiplied by half that leaves you with 3 and plus 1, so total 4 per unit cell. Okay, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4 per unit cell. Is it clear? Even in the book you will find BCC means body centered, face centered means FCC, or sometime even say FC. Okay, FC, and then simple cube is generally referred to as SC. So these are abbreviations, sometime they may be given like that.